हमारे पैनल डिस्कशन का टॉपिक इस बार है थिंकिंग बिग एंड मेकिंग इट हैपन। एक सफल एंटरप्रेन्योर होने के लिए सिर्फ एक बड़ी सोच का होना काफ़ी नहीं है, उस बड़ी सोच को क्रियान्वित करना उतना ही महत्वपूर्ण है। टू एग्जीक्यूट ऑन सच विजन रिक्वायर्स persistence, discipline, and skills, which all entrepreneurs must develop. This panel discussion brings together entrepreneurs that have successfully achieved growth and those who have said about doing so. So please welcome our today's panelist. First of all, I would like to introduce Professor Rajesh Agrawal. Professor Rajesh Agrawal is currently a professor of practice at IIM Udaipur. He is a chairperson of executive education, one-year MBA programs and diploma programs at IIMU. Prior to joining IIMU, he was a professor at Indian Institute of Management, Ahmedabad. A big round of applause, please. Now I would like to introduce our panel member, Mr. Arun Singhal. He's having 26 years of experience in Unilever, Johnson & Johnson, and Dumex India in sales, marketing, operations, journal management in senior positions in India and Asia Pacific. Been consulting, coaching, and counseling individuals, small and medium business since 2007. Working with IIM Udaipur as a faculty of IBP. Talia, please. Now I would like to introduce Mr. Lokendra Singh Ranawat. He is a co-founder and CEO of woodenstreet.com, which is India's fastest growing furniture e-commerce company and has 50 plus experience across the country. A strong love of art and technology have driven him to enter the furniture world to explore his passion for the same. A big round of applause, please, again. Our next panelist is Mr. Puneet Talesra. He is founder and CEO of Pyrotech Workspace Solution Private Limited. He is a product designer and an inventor, aiming to provide world-class control room solution to industrial sector. I think I should not repeat to applaud, remind you for applauding all the time. And the next panelist is Shri Rajkumarji Surana. He's co-founder and managing director of Nahar Colors and Coating Private Limited, Orient Glazes Private Limited, Quartz manufacturing quartz engineered stones. The growth in ceramic tile industry over the last 3 decades has made Nahar and Orient the largest producers of frits and glazes in India and growing exponentially. So I would like to welcome you all, and over to Mr. Rajesh, please. I'll take all my papers. Okay, I'll just, 1 second, please. A very good morning to all of you, and a warm welcome to this panel discussion. I'm delighted to be here. It's my first time to visit the Udaipur Chamber of Commerce. And I'm so inspired by the inaugural speech by Mr. Singhal, where he talked about the customer centricity not only for all us as businesses, but also for chambers of commerce, including IIM Udaipur. No matter which enterprise we run, the customer centricity is the key. Now, coming back to today's panel discussion on thinking big and making it happen, it couldn't have been more appropriate to have this conversation now when India is rising big on the world scale. When we talk about thinking big and making it happen, we are talking about the entire continuum from the idea to execution. We can't falter at any stage. We are talking about setting up a compelling vision,
down to building a profitable, sustainable business, right? The entire range. Now, when we say thinking big, Mr. Singhal talked about scaling up, right? But sometimes something goes wrong and we are constrained in terms of thinking big. Now, it could be perhaps that sometimes we lack the power of conviction or the fear of failure, or we are daunted by the competition. We don't know what, right? Something holds us back. What is it that holds us back? Likewise, in terms of execution, now, world over, research has shown that many businesses have failed not because they did not have a compelling idea or a grand strategy, but perhaps that strategy was not well executed. We faltered in delivering in execution of those strategies. So the crux is, how do we execute? Execute systematically, routinely, repetitively, and well. So what in the management lingo we call it execution deficit or execution gap. Can we turn this execution deficit to execution edge? How do we thrive in today's competition is to create an execution edge rather than a deficit, right? So how do we get there? Now, this is the entire range, and you can, I'm sure you would agree that perhaps 1 hour may not be sufficient time to be able to discuss and understand the nuances and crack everything. But here, we have a power-packed panel. Unlike me, the panel here has done it all and successfully. So it's no better than to hear from the horse's mouth as to how did they go about creating an enterprise which is recognized globally or nationally or regionally and have done well. And in this conversation, I would like to invite the engagement of the panel as well as yourselves to be able to ask questions. We'll try and see how do we manage our time well so that we can ask questions from the audience to the panel members. Please do ask difficult questions to the panel. Right, now, in terms of the structuring, I have requested the panel members to first talk about the thinking big part, right? How do we go about doing it? What happens if something is holding us back? Have some conversation on that idea, then we move on to the idea of the execution, and then take your questions and move forward. So what I'm going to do in the sequence in which the panel is seated, I'd like to request Mr. Lokendra to understand how did he go about setting up a great organization called Wooden Street in a fragmented business such as furniture, right? It's almost like commoditized business. How did he go about doing this? So over to you, Mr. Lokendra, to hear your thoughts. Whichever way you feel comfortable, here or there, there's a microphone there. So I think I'll be more comfortable here. Wonderful. So please be there. Yeah. Good morning, everyone. My name is Lokendra Singh Ranawat. I'm the founder and CEO of Com. We are India's one of the fastest growing furniture e-commerce company. No? So should I? So am I audible now? Yeah. Okay. So it's my pleasure being a part of this panel, and I will quickly introduce that how we have built this organization, what challenges we have faced, and what was the vision behind building this startup. It will take around 4 to 5 minutes, so you'll have a better understanding of what we are doing. So we started in 2015. The vision was to build India's one of the most unique startup, which was custom furniture, which we can sell online. And this was an era like 2015, where like lot of e-commerce companies was popping up in India. Amazon was very new, and the kind of products which we were offering was not available online that time. So we started with a team of 10 people with an investment of around 8 to 10 lakh rupees. We started from a small office in Daulat Chambers, which is a building based near Mira Girls College, you must be aware.
initial phase was, yes, it was a challenging because we were based in Udaipur. The resource crunch, the right technical talent was, a big scarcity here. And again, majority of the e-commerce whom we were competing with, these companies were based in cities like Bangalore, Delhi, Hyderabad, Mumbai. So we were far away from the market because ज़्यादातर e-commerce का market भी इस तरह की metros ही हैं. Again, the product which we chose, like furniture, so this product was manufactured in areas like Jodhpur, Jaipur and Churu. So again, we were, away from manufacturing hub also. So we thought that, okay, it will be difficult, but, we tried our best. I was traveling to Jodhpur almost like 15-20 days in a month. We rented a small shade there, and we started with around 4 carpenters with few manual machines in 2015. We built our website. We started getting good traffic. Orders आ रहे थे. शुरू के 3 साल we run this company on a bootstrap. We didn't go for a funding, but we got the flavor that yes, there is a huge market in front of us because the kind of product and the kind of response we were getting from across the country was really amazing. Now the idea was that how we can scale it up. We also opened our first experience store in Bangalore. जहाँ हमारा वेयरहाउस था वहीं हम उसको आधा को हमने वेयरहाउस यूज़ किया और आधे को हमने एक एक्सपीरियंस स्टोर में कन्वर्ट किया. तो हमें ये भी पता चल गया कि हाँ, प्रोडक्ट फर्नीचर जो प्रोडक्ट है उसको टच एंड फील की बहुत ज़रूरत रहेगी बिकॉज इट्स अ हाई टिकट साइज आइटम एंड कस्टमर वुड ऑलवेज प्रिफर इफ ही कैन टच एंड फील. So going forward, we would need to have more experienced stores like this, and this is a capital incentive business. So we would, need a funding. So when first 3 years when we were bootstrapped, we were also working on our business plan. So we made a 5-year business plan, and parallelly, while focusing on business, we were also going and meeting, to all the investors across the country. So actively meeting, like attending meetings in Mumbai, presenting ourselves in a lot of startup events. So पहला जो फेज था स्टार्टअप्स जब हम इन्वेस्टर्स से मिलने जाते थे तो बहुत सारे टफ क्वेश्चंस वी यूज्ड टू फेस एंड व्हेन वी यूज्ड टू कम बैक एंड वी यूज्ड टू डिस्कस इंटरनली अमंग आवरसेल्फ इन द इनिशियल मीटिंग्स हमें लगा कि यार इन्वेस्टर्स बहुत अजीब से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. These are not related to business. But जैसे जैसे हमारी मीटिंग्स बढ़ी और हम लोग और इन्वेस्टर से मिले तो हमें बाद में पता चला कि एक्चुअली दे वर राइट. दे आर एक्चुअली समटाइम्स फाउंडर मिस दैट बिग विजन, द बिग पिक्चर विच दे कैन सी. सो दैट वाज अ गैप. वी raised our first round of funds in 2018. 3 साल ऑपरेशन के बाद में वी गॉट अ फंडिंग फ्रॉम राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड्स. सो वी रेज्ड अराउंड $1 million विच इज़ अराउंड 6.5 CR. हमने पहला ट्रेंच 3 करोड़ रुपए हमें मिले और उसको हमने और बिजनेस एक्सपेंशन में लगाया. जो पैसा इन्वेस्टर से आया तो वी opened more experience stores. We worked on our supply chain, which was one of the biggest challenge for us that time. Then in 2020, we again went and raised our second round of funds, which was a round of funds, and we got funding of around 18 crores. The first round which we raised from RVCF, the valuation of the company was around 23 crores. उस टाइम हमारे रेवेन्यूज़ भी कम थे, हम 1.5 से 2 करोड़ महीने की सेल कर रहे थे. और जब सेकेंड राउंड हमने रेस किया 2 साल बाद तो हमारी वैल्यूएशंस वर 120 करोड़. वी गॉट द फंड फ्रॉम इंडिया एंजल नेटवर्क एंड इस टाइम जो इन्वेस्टर्स हमारे ऑन बोर्ड हुए और दीज वर वन ऑफ द बिगेस्ट वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री. मिस्टर सौरभ श्रीवास्तव हु इज़ द फाउंडर ऑफ NASSCOM, Sanjeev Bikhchandani, who is the founder of Naukri.com, Raman Roy, HCL founder Ajay Roy. So ये सारे लोग हमारे पैनल पे थे, कुछ लोग हमारे बोर्ड पे थे और हमें एक राइट डायरेक्शन मिलने लगा. सो जो थिंकिंग बिग आज जो टॉपिक है, उदयपुर में बैठ के
कई बार जो एक बड़ा विजन देखने का जो नज़रिया था वो अब जाके हमें मिलने लगा. वी यूज्ड टू फ्लाई डाउन टू दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद. वी यूज्ड टू सिट विद दीज पीपल. वी यूज्ड टू सी हाउ HCL was built, how Naukri.com was built. So we also started, thinking in a different direction that, okay, we don't want to limit ourselves to a city or a state. The whole country is open, whole world is open for us. जब हमें 120 करोड़ का वैल्यूएशन मिला, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि ओके, द स्केल कैन बी रियली लाइक, वी कैन रियली स्केल दिस वेंचर. एंड वी स्टार्टेड टेकिंग लाइक लिटिल बोल्ड स्टेप, लाइक थोड़ा सा रिस्क हमने लेना शुरू किया. हमें नेक्स्ट अभी रिसेंटली वी हैव लास्ट मंथ वी हैव क्लोज्ड अनदर राउंड ऑफ फंड्स. सो नाउ द valuation of the company has raised to 1200 crores, and so now we have 50 plus experienced stores in all parts of the country. Out of that, 45 is company owned, 4 we have given as a franchisee. Now the investors again who are on board, they are one of the largest investors of the country, and now the vision is again bigger. Now they feel that this company has a potential to be another IKEA from India. So पहले जो विजन राजस्थान को लेके हम चले थे कि ओके लेट्स टारगेट राजस्थान, जैसे इन्वेस्टर्स आए वो इंडिया की तरफ हुआ. नाउ वी आर टारगेटिंग ग्लोबल. सो इन नेक्स्ट 18 months वी आर टारगेटिंग दैट वी विल बी एंटरिंग US, UK and Australia, all 3 continents. And the kind of growth which we are expecting in next 3 years is that we want to take this company to around 10,000 crore valuation in next 3 years, and we will be opening around 100 plus stores. So now our strategy is very aggressive. We are opening around 8 to 10 stores every month. We have already identified areas in Europe. We are opening 2 stores in Netherlands, 2 in London. The teams are already there. They are working on warehousing and building up a supply chain. तो अब जब 6.5 साल हो गए हमें शुरू किए हुए, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 10 लोगों की वो टीम, दौलत चैम्बर्स का वो छोटा सा ऑफिस जहाँ हम 8,000 रुपये रेंट देते थे, उसके लिए भी हम लोगों ने 2 दिन तक नेगोशिएट किया था कि टुडे वी आर अ टीम ऑफ 2,000 पीपल, 700 आर ऑन रोल एंड 1,300 पीपल वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. We have one of the largest research and development unit based in India. So our manufacturing base is spread around 10 lakh square feet. We are using the most high-end automated machines in making furniture. And we have 18 offices across the country now, where जो छोटे challenges 5 साल 6 साल पहले हमें लग रहे थे कि उदयपुर में बैठ के राइट रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, राइट टेक्निकल अपग्रेड कैसे मिलेगा. सो स्लोली जिस तरीके से इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड हुए, हम लोग बाहर जाके लोगों से गाइडेंस मिलती रही, तो अब वो सारे चैलेंजेस बहुत छोटे लगने लगे. नाउ वी हैव ए वेरी फुल फ्लेजेड वर्किंग ऑफिस इन बैंगलोर, सो ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैज़ बीन डन. We have now opening office in Europe also, that all the marketing and sales activities can be driven from there. So this is how we have built Wooden Street, and going forward I would again cover more aspects in second phase. Thank you so much. Thank you so much. So I'm sure that was very inspiring to see how a very small idea grew into such a large corporation, and sky's the limit as he's unfolding his vision going forward. So what I would suggest that if you have some questions, I'm sure you have many, if you can just hold back so that we quickly have a one round of conversation with all the panelists, and then kind of come back to you and so that you can ask questions. I hope that's okay, right? Mr. Arun Singalji, if you'd like to go next. Thank you, Rajesh. I hope everyone can hear me, right? Wonderful. Good. So I'm here, quick recap of, I'm not an entrepreneur. I'm a coach and management coach and consultant. 40 years, 24 years with Johnson & Johnson, Unilever and Dumex, last job as managing director. Last 14 years working with people like you to build their businesses. In Bombay, in Udaipur. Udaipur में मैं पिछले 5-8 साल से हूँ. मेरे फादर यहीं रहते थे. He retired as a chief engineer, तो बड़ा अच्छा घर है पोलो ग्राउंड में.
तो वाइफ ने बोला अब तो हम यहीं रहेंगे, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। मैंने कहा यार अब कहाँ जाएंगे, चलो उदयपुर ही चलते हैं। तो 8 साल से हम लोग यहाँ हैं। So I'll share couple of learnings from 26 years and 14 years on what can help you scale up, think big and become big. दोनों चीजों के बारे में थोड़ी सी अपनी जो मेरी सीख है वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्या आपको मालूम है सबसे बड़ा हर्डल क्या है थिंकिंग बिग और बिकमिंग बिग में? डू यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट हर्डल? Any thoughts? Failure, thinking. Sorry? Wonderful. Absolutely right. We ourselves are the biggest bottleneck in our becoming big. Why? Because हम सब ने बिजनेस छोटा छोटा स्टार्ट किया, सब चीज अपने हाथ से करी, टैली के अकाउंट्स भी रखे, सेल्स भी की, प्रोडक्शन भी देखा, और हम उसके आदी हो गए. वी गॉट यूज्ड टू डूइंग दैट. मैं खुद कर लूंगा, मुझे आता है. अगर आपको बिग बनना है तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट मोड. देयर इज अ वंडरफुल बुक. मैं भी जिस आपकी तरह जैसे कंपनियों में काम किया, so I used to think strategy is the best thing in life. I mean, if you got the right strategy and you can execute, you will big. Jim Collins proved me wrong. It's a wonderful book he has written called From Good to Great. And he says, your growth, your future is dependent on the people that you have in your bus, in your company. क्योंकि अगर आपको बड़ा बनना है और बड़ा सोचना है, तो क्या सिर्फ आपके बड़ा बनने और बड़ा सोचने से काम हो जाएगा? जब तक आपका हर एक एम्प्लॉई उस तरह से नहीं सोचेगा, एटलीस्ट द की स्टेक होल्डर्स, आपकी जो नेक्स्ट लेवल टीम है, वो जब तक उतनी लेवल पे नहीं सोचेगी, क्या आप बड़ा सोच पाओगे? इमेजिन आपके हेड ऑफ फंक्शंस हैं, आप हर बार बोलते कि यार अभी 100 करोड़ है, 1000 करोड़, बोलते नहीं सर वो कैसे होगा सर, बहुत डिफिकल्ट है सर, बहुत चैलेंजेस है सर. तो आपका तो पानी, आपकी आकांक्षाओं पे तो उसी समय पानी गिर जाता है ना. सो बिगेस्ट थिंग दैट वी नीड इज द पीपल हु कैन थिंक लाइक यू बिग. और वहां हम शॉर्टकट्स लेते हैं. मेरे एक्सपीरियंसेस हैं यहां पे बॉम्बे में in last 14 years working with people like you, because people who can think big and who can do well don't come cheap. और हम पैसा नहीं खर्च करना चाहते. हम चाहते हैं कि यार 10,000 रुपए के दिन में अगर हम किसी को ले लें तो अच्छा है ना, 30,000 क्यों दें? और वहीं पे हमें वो लोग नहीं मिलते हैं. We don't get those people who can think big like us and who can make us big. So we shortchange ourselves. We get into a cycle of hiring not so great people within our company, limiting ourselves continuously, wondering यार ये बिजनेस बड़ा क्यों नहीं हो रहा है यार, मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूं. पर आपके दिन रात मेहनत करने से कुछ नहीं होगा. आप एक टाइम हुआ था पर वो समय निकल गया, आप यहां से यहां आ गए. अब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड बनना चाहते हैं, जो जनरली सबकी एस्पिरेशन है, मैंने जितने मीडियम एंटरप्राइजेस से काम किया सब चाहते हैं यार स्टॉक मार्केट में एक बार इन्वेस्ट कर दें, बड़े बन जाएं, 200 करोड़ से 500 करोड़ बन जाए, 1000 करोड़ जाए, स्टॉक मार्केट में फंडिंग मिल जाए, एक बार बड़े हो जाएं. उसके लिए हमें उस कैलिबर के लोग चाहिए. सो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड अ टीम. एंड अगेन ऑल ऑफ यू प्रोबब्ली नो दिस, आई लाइक यू टू कनेक्ट. अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं, आपकी टीम में कौन है, क्या टीम है आपके पास, दिखाइए कौन है आपकी टीम में, उनका कैलिबर क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है. आपसे ज्यादा वो उनसे बात करते हैं. तो वो आप एज अ सीईओ, एक्चुअली आई वुड से, आई हैव बीन अ सीईओ माई सेल्फ, यू आर द मोस्ट पावरलेस पर्सन. आप कुछ नहीं कर सकते, एक चाय का प्याला भी नहीं मंगा सकते अगर आपका नीचे का सेक्रेटरी काम नहीं करे तो. खुद जाके बना सकते हैं, पर कब तक खुद बनाते रहेंगे? So if you have to think big and act big, you have to get the right people first time. I'll give you 2 examples to say that. Johnson & Johnson 1983, I was general sales manager. हम लोग 5 साल में बिजनेस डबल करते थे, 16-17% की एवरेज ग्रोथ, बड़े खुश थे.
हमारी इमेज हमसे बहुत बड़ी थी, हम थे 30 करोड़ का बिजनेस, लोग समझते थे हम 300 करोड़ का बिजनेस, इमेज इतनी बड़ी थी। तो मैनेजमेंट ने बोला यार आप लोग इतना बड़ा लोग समझते हैं तो थोड़े बड़े भी हो जाओ यार, 30 करोड़ में क्या रखा है। सो वी गॉट अ मैंडेट, आवर कंपनी ग्रुप चेयरमैन सेज टू आवर मैनेजिंग डायरेक्टर, यार अब तो 3-5 साल में बिजनेस डबल करने का कोई मतलब नहीं, आई वांट यू टू कट डाउन टू 3 इयर्स, 3 साल में आप बिजनेस डेवलप करो। वी वर एबल टू डू दिस बिकॉज हमारे पास उस तरह के लोग थे। देयर वाज अ टाइम जब हम बिजनेस साल भर के अंदर वी थॉट अबाउट द प्लान, द टीम वर्क टुगेदर, मेड अ स्ट्रेटजी एंड इंप्लीमेंटेड ब्यूटीफुली। एक टाइम ऐसा आया, मैं अपनी सेल्स टीम के साथ बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं यार थोड़ा स्लो जा, बोले सर स्लो क्यों जाना है। दैट इज द टाइम यू रियलाइज यस देयर इज पावर इन पीपल एंड दे कैन मेक अस बिग। सेकेंड, एक थोड़ा आपको नेगेटिव एग्जाम्पल देता हूं। मैं फर्स्ट कंसल्टिंग असाइनमेंट जॉनसन एंड जॉनसन छोड़ने के बाद में, ड्यूमेक्स छोड़ने के बाद में 2007 में बॉम्बे में था। एक एंटरप्रेन्योर थे डॉक्टर नरम, डॉक्टर स्मिता एंड पंकज नरम, बहुत उनकी दुनिया भर में क्लिनिक्स हैं। दे वांटेड टू गो द ओटीसी रूट, थिंक बिग। भाई अभी क्लिनिक पे जाते हैं, पेशेंट्स आते हैं, बिजनेस 10 करोड़ का साल का होता है, हमें 100 करोड़ बनाना है। एग्जैक्ट काइंड ऑफ एस्पिरेशन दैट वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट। तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले एक जनरल से कहीं से सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हायर किया। उन्होंने उनका बिजनेस बढ़ाया, बताया, स्ट्रेटेजी बताई कैसे करना, ओटीसी में कैसे लॉन्च करना। Somehow he was not the right person. उसने जो स्ट्रेटेजी बनाई, see the impact the person makes. The key persons, if they make a wrong strategy, would your business grow? Is the question. उन्होंने उनको 1 करोड़ का फटका लगाया, स्टॉक मार्केट में डाला, फंस गया पैसा, 2 साल पैसा नहीं आया। And that's where I walked into the consulting assignment. So first thing we did was to get the right people. We built a regional team of sales managers. Found people from Johnson & Johnson, Cipla, IPCA, who have worked, because we figured out the strategy for making big in OTC business is not consumer advertising. It's going to doctors, getting prescription and making OTC. So that is another example. So that is the first thing I would say one has to people, if you can focus. And I have other experiences. I work with some of, I don't know if some of you are here, and I find there's a big hesitation among us, there's a big insecurity among us to hire better people than us. हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब तक हम डरते रहेंगे, अच्छे लोगों को नहीं हायर करेंगे, how will we make it big? And that's why I leave the question for you and pass it on to Professor Rajesh Kumar. Wonderful. So, 2 messages, akela chana bhad nahi phorda. So one person is only one, no matter the person is a founder, and you need a core team and right people for the right job. And if that assignment is not correct, and then perhaps we cannot take off. Moving on, I'd like to invite Puneet ji and like to listen to his thoughts. Yeah, thank you, sir. First day on stage, मैंने अवार्ड्स तो 100 से ज़्यादा जीते हैं, पर आज तक स्टेज पे नहीं बैठा। तो मैंने संदीप भैया को पूछा था कि आर यू श्योर कि आप मुझे बुलाना चाह रहे हो? बोले आजा, तू सीख जाएगा यार, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आई विल स्टार्ट माई मतलब आई वुड लाइक टू गिव सम लर्निंग्स जो मैंने सीखी है कि मतलब व्हेन आई वाज इन, मतलब आई हैव नेवर गॉट 70% मार्क्स इन एंटायर लाइफ। ठीक है, पर मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ। मुझे जितने फ्रेंड्स ने कहा कि तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है IIT के लिए, तेरा हो ही नहीं सकता, किसी जने का हुआ नहीं जब तक 90% नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैंने हर वो चीज़ ट्राई की जिस पे लोगों ने मुझे मना किया। मेरा फर्स्ट IIT में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने पापा मतलब ग्रुप को ज्वाइन किया। मुझे लगा यार कि कुछ तो नया करते हैं वापस, वो सनक तो थी। तो मैंने वापस जाके पापा से बात की कि आई वांट टू डू समथिंग ऑन माई ओन। और मैंने 2009 में पार्टेक वर्क स्पेस को डाला विथ मियर 12 पीपल एंड 6 करोड़ टर्नओवर, 10-20 फिटर्स और होंगे। हमने मतलब लास्ट दिस ईयर वी विल टच रफली 130 करोड़। ये जो मतलब मुझे टर्नओवर कम लगता है ये, पर ये जो मार्केट इट इज़ अ वेरी निश मार्केट। वी आर सप्लाइंग आवर कंसोल्स, जो नीदरलैंड्स की जो सबमरीन्स होती है से लेकर ऑस्ट्रेलिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 100% मिलिट्री एयरक्राफ्ट हमारे कंसोल से उड़ते हैं। ठीक है, और इंडिया में
इंडिया में देयर इज नो प्लांट नहीं कहेंगे, नो डिपार्टमेंट ऑफ ISRO या DRDO, कोई भी नहीं, मतलब जीरो कह रहा हूँ मैं, कि ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसपे हमारे कंट्रोल रूम्स नहीं लगे हुए हों। तो हमने मतलब इंक्लूडिंग शाहरुख खान का घर हो या नहीं सॉरी मुकेश अंबानी का घर हो या शाहरुख खान की जीरो मूवी जिसमें वो नासा दिखाया था, वो क्रिएट हमने किया था। तो कंट्रोल रूम्स में हमने निश क्रिएट किया। व्हेन वी स्टार्टेड देयर वर अराउंड 10 कॉम्पिटिटर्स इन 2009। उनका कंबाइंड टर्नओवर हमसे 1/10 थे अभी इंडिया के अंदर। तो हमने अब मतलब मैं ये बताना चाहूँगा, अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमको भी लग रहा है टर्नओवर कम है सब, वो एक अलग स्टोरी है। पर यहाँ तक करने के लिए हमने जो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टीम डेवलप करनी पड़ती है, तो हमने 2009 में विजन लिखना इज़ वेरी इजी कि वी वांट टू बिकम कोट्स डाल के, पर उसको करोगे कैसे? फाइनली तो करना है ना, बोलने से होता क्या है। तो हमने जो गोल्स बनाना ये सब भी नेट पे सब मिलता है, पर हमने जो गोल्स बनाए और उनको ब्रेक किया, मतलब हमने उनको 5 पॉइंट टारगेट में ब्रेक किया, जिसमें से हम बोलते हैं कि 3 टारगेट्स, हर साल के 5 टारगेट होते हैं कोर कंपनी के, कोर टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, जिसको हम रेगुलर टारगेट्स बोलते हैं, जो कस्टमर मांगता है हमसे। 2 होते हैं जो कस्टमर नहीं मांगता, इंप्रूवमेंट टारगेट, कि वो नहीं बोलेगा कि तुम प्रोडक्ट इंप्रूव करो, वो नहीं बोलेगा तुम नया प्लान डालो, वो नहीं बोलेगा तुम प्रोसेस इंप्रूव करो, उसको कोई लेना नहीं, आपको लेना नहीं तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम 5 टारगेट्स डालते हैं। इसको हम 100% टीम के अंदर 5 पॉइंट टारगेट पे हर बंदे का 5 पॉइंट टारगेट होता है। इफ यू हैव 100 पीपल देयर विल बी 500 टारगेट्स इन टोटल। और ये तो क्या टारगेट डालना, अभी भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए हम ट्राई करते हैं कि जितने ऑटो मोड्स हो चुके हैं, हम सब बोलते हैं कि ऑटो मोड में आ गया क्या है, इसका मीनिंग है कि हमने उन 5 टारगेट को उनकी सैलरी से लिंक कर दिया कि योर ग्रोथ इज इन योर हैंड्स। अगर आप बंदों को ट्रांसपेरेंसी से बताओगे कि इतना करने से तुझे इतना मिलेगा, ना वो बंदा कभी छोड़ेगा और ना वो कभी कम परफॉर्म करेगा। हर टारगेट के ऊपर पहले से परसेंटेज लिखा होता है, 4% इंक्रीमेंट इफ यू डू दिस, और हर टारगेट क्वांटिफाइड होता है। तो मैं किसी आफ्टर ऑर्डर आई हैव नो वर्क, मतलब ऑर्डर आने के बाद ना मैंने आज तक कोई प्रोडक्शन मीटिंग ली, ना आज तक मैंने कोई मतलब आई डोंट टेक एनी मीटिंग्स। मैं जो वर्क करता हूँ आई वर्क ऑन बिफोर ऑर्डर ओनली, लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और उसी के अराउंड स्ट्रेटेजीज। मुझे पता है कि आफ्टर का हमने बहुत सेट कर दिया है। और सिंगल सर यही है, मैं 3 साल पहले सर ने मुझे एक एडवाइस दी थी, एडवाइस नहीं जस्ट बात कर रहा, 3-4 साल पहले सर ने कहा था कि एक बार हमारा मीटर्स, सर को याद नहीं होगा पर मुझे याद है क्योंकि मेरे को काम की चीज़ लगी तो मैंने याद रखा, कि 4 साल पहले नहीं, मतलब 2000 के पहले हमारे कुछ मीटर्स रिजेक्ट हुए थे और हमने उनको, मुझे वो हराम का पैसा लगा था और मैंने उसको वापस कर दिया कस्टमर को। मैंने ये जाके इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने लकीली रिजेक्शन नहीं हुए, पर जितना भी इश्यूज आए हमने कस्टमर को आगे बढ़ के फ्रीबीज जो भी कहेंगे, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे भी, पर हमने कहा कि यार ये हमसे गलती हुई है सर। बोले गलती दिख तो नहीं रही यार, तुमने तो सही कर दिया। मैंने कहा पर वी टुक 10 more days टू कंप्लीट दिस जॉब। हमारा कमिटमेंट 10 days पहले का था। हमने उसको फ्री चीज़ें या जो भी हो सकता था उसको हैप्पी करने के लिए, क्योंकि हम 10 on 10 नंबर लेते हैं, वो भी हमने ग्रेड से जोड़ रखा है। हर प्रोजेक्ट का हमारे पास नंबर्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट का एप्रिशिएशन लेटर होता है, हर प्रोजेक्ट का क्या कहेंगे, हमने कनेक्ट कर रखा है इसको ओवरऑल। तो हम मतलब गलती छोटे से बिजनेस के अंदर हमने मतलब इस तरीके से हमने लोगों को, उदयपुर के लोग हैं मोस्टली, मोटिवेट करके हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि वो जो नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, US इस जगह मटेरियल बेच रहे हैं। अब हम इस साल से 2 साल पहले से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लाइक वी हैव डेवलप्ड मोर देन 100 टाइप्स ऑफ इंटीरियर के जो हम करते हैं कंट्रोल रूम्स के इंटीरियर के कंपोनेंट्स। नाउ वी हैव पुशिंग देम इन अदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एक और सीख दे रहा हूँ मैं कि सबसे ईजी बेचना है तो उसी को बेचो जिसको आप जानते हो, वो है आपका कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर उसको कोई सेकंड रिक्वायरमेंट है और आप वो बना सकते हो तो सबसे इजी किल ये है, बजाय कि आप मतलब यू आर एट द सेंटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आपका नियरेस्ट जो सर्कल है वो आपका नॉन कस्टमर है, आउटरमोस्ट सर्कल वो है जहाँ मार्स में कस्टमर बैठा है, आपको उसको बेचने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। आप इनरमोस्ट सर्कल पे फोकस करो कि इसी कस्टमर को और क्या चाहिए, ऐड करते जाओ। तो हमारा जो टर्नओवर था, हमने अभी 6 महीने के अंदर वी एडेड, जितना बार बुकिंग होता था 75 करोड़ ऑफ न्यू बुकिंग नए प्रोडक्ट के लिए सेम कस्टमर से। तो हम अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। गलती हमने बहुत सारी की होगी इसलिए थोड़े स्लो है, पर वी आर नंबर 1 इन द कंट्री, टॉप 3 इन द वर्ल्ड। हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है ऑटोमेटिकली, पता नहीं कौन छापता है, पर कंट्रोल रूम्स के अंदर वी हैव डन, पर कंट्रोल रूम्स में वी हैव डन वंडर्स। ऐसा कस्टमर बोलते हैं
जो जो उदयपुर में विजिट करते हैं फ्रांस से आके, ऑस्ट्रेलिया से आके। और एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, जैसे हम मतलब उदयपुर को वी हैव मेड मतलब प्राउड मैनी टाइम्स। जैसे हम जाते थे कि टाटा के जो एमडी थे टाटा पावर के प्रसाद आर मेनन साहब 2014 में उनका एक कंट्रोल रूम कर रहे थे। आफ्टर 5th विजिट वो हमसे पूछते हैं कि यू आर फ्रॉम बॉम्बे, तो कल रुक सकते हो क्या? मैंने कहा नो सर, वी आर फ्रॉम उदयपुर। तो वो बोलते हैं कि उदयपुर में तो यार हमने सुना था खाली जूतियाँ बनती है और साड़ियाँ। तो मैंने कहा नहीं, इसे वर्ल्ड क्लास कंट्रोल रूम्स भी बनते हैं। तो लास्ट ही क्योंकि कुछ यंगस्टर्स भी दिख रहे हैं कि जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी भी रोका नहीं और कभी भी ये नहीं बोला तू ये नहीं कर सकता है, तो आप भी मत बोलो, क्योंकि आपको किसी का पोटेंशियल नहीं पता, किसी का भी। बस बहुत है इतना। और कोई भी सीरियस टॉपिक नहीं होना चाहिए। हंसी मजाक में काम जैसा जितना अच्छा होता है इतना सीरियस होके नहीं होता। तो मैं इसलिए पूछा था कि मैं बैठ सकता हूँ ना। मुझे स्टेज फियर नहीं है। मुझे लगता है कि लोग मतलब ऐसे सोचे एक फॉर्मल फंक्शन में मजाक कर रहे हैं। थैंक यू सर। Thank you very much. So what I'm going to do is to take the liberty of the moderator to kind of draw some lessons across the panelists. The first thing in Mr. Lokendra's conversation, he talked about, he opened up the experience stores, right? And I think as you read and understand, particularly after the pandemic, that we are talking about customer experience, not only the product, but the customer experience is becoming central. Though he may not have emphasized in so many words, he talked about basically obsession with quality. Mr. Arun Singhal's conversation in which he talked about core team hiring quality people, right? And again, Mr. Puneet's conversation, we talked about becoming world class in the business that he is in, quality product and quality experience of the customer. So I think the running theme, though unsaid, but you can see, is the obsession with quality in everything that all the panelists have done in their lifetime. Moving on with Mr. Raj Surana, if you would like to talk about some of the thoughts on this. या धन्यवाद अरुण जी। या अग्रवाल साहब, मुझे इस पैनल के लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूसीसीआई का। Scaling big and think big is the theme of today's panel discussion. देखिए, दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एक जो खुद आपके ज़ीरो से शुरू करते हैं, कुछ को आपके या बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलता है। तो हम लोग आपके या ज़ीरो से शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर थे और हम कलकत्ता से उदयपुर शिफ्ट हुए और सिरामिक ग्लेस की फैक्ट्री डाली। कैपिटल वाज अ कॉन्स्ट्रेंट, यस। So we used to work almost 24 hours a day in the factory, even sleep in the factory, pick up the bags, etc., etc. लेकिन ये कहा है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात आपका सहयोग करने लगती है। हमेशा दिल में एक बड़ा विजन था कि हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है। अब बड़ा बनना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे मायने हो सकते हैं। मीन्स अंबानी के जितना बड़ा नहीं, बट अपने हिसाब से बड़ा। अपना दिल बड़ा होना चाहिए कि आप पैसा कमाने के साथ में समाज के लिए भी कुछ काम कर सको, समाज के लिए काम आओ। सो आवर जर्नी स्टार्टेड इन 1987। My brother-in-law and me both came from Calcutta, started this factory, Nahar Colors. Initial years were very difficult. There was so much of struggle in life. Even for a small amount for going out for traveling was a challenge. But slowly and steadily things started moving better, and our expansion spree started. So from Sukher we went to Thur, from Thur we went to Bharuch plant, then we put up 2 more plants in Gujarat, which is near to Ahmedabad, and now I am very happy to share that that we are one of the largest fruits and glazes company in the country, and our quality is, I would say, is better than the European producers. Even because of the finance cost, we are not being able to export to Europe and other countries.
Otherwise, our products are much better than them. Then we started another plant, which was quartz manufacturing. We started in 2011. That was a new idea, और हम उसके अंदर में कूद पड़े. हम लोगों ने गुजरात से काम करके एक चीज़ सीखी कि ये जो पेपर पे स्ट्रेटेजीज बनाना, आपके या फाइनेंशियल्स बनाना, ये एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे जैसे जो कि ज़ीरो से उठे हैं उनके लिए काम नहीं करती है. आपको आइडिया अच्छा लगा, कूद पड़िए. आप कूदोगे तो अपने आप तैरोगे. ये हमने गुजरात से सीखा है, और गुजरात में यही कॉन्सेप्ट है. कुछ लोग पान की दुकान पे मिलते हैं कि आजकल क्या इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, पांचों मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो अपन भी ये डालते हैं. उस इंडस्ट्री का ABCD नहीं पता है, इंडस्ट्री डल गई. उसके अंदर में 50 पार्टनर होंगे, 5 काम करने वाले होंगे. वो 5 ही पूरा आप वो लेते हैं, डिसीजन लेते हैं. 50 लोगों के पैसे लगे हैं. एक चीज़ और बीच में कहना चाहूँगा कि उनमें जो आपस में ट्रस्ट है वो हम लोगों को के लिए एक सीखने की लायक चीज़ है. 50 पार्टनर जिनके पैसे लगे हुए हैं, 5 काम कर रहे हैं, उन 5 ने जो डिसीजन लिया और जो हिसाब बना के भेजा वो फाइनल है. उसके बाद में कोई सवाल नहीं है. अगर मेरा पैसा किसी की इंडस्ट्री में लगा है तो मेरे हमेशा आंख और कान लगे रहेंगे वो आपकी फैक्ट्री में क्या कर रहा है. ये जो बॉन्डिंग और ये ट्रस्ट, जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो एक क्वालिटी है वहाँ पे गुजरातियों में, ये हमें सीखनी चाहिए. हमारे ब्लड में आपके क्या बिजनेस है. बीइंग आप राजस्थानी, बीइंग मारवाड़ी, हमारे खून में ही यहाँ पे बिजनेस है. क्यों हम अपने बच्चों को आपके या नौकरी की तरफ आप या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं. हमें अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर की तरफ जो उनको आप फोकस करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ के 100 लोगों को काम दे सकें. एंड सो अभी बिजनेस इज गोइंग गुड एंड आई होप दिस कंटिन्यूज एंड वी हैव अ बिग विजन फॉर आवर बिजनेस. प्रोबेबली जो पहला 100 करोड़ का मार्क पार करना बहुत डिफिकल्ट था, बट 100 करोड़ के बाद में चीज़ें बहुत फास्ट आपके यहाँ मूव होती जा रही हैं. एंड अगले 3 साल में वी एक्सपेक्ट दैट वी वुड क्रॉस अ टर्नओवर ऑफ 1,000 करोड़. दैट्स इट. Thank you so much. Thank you very much. So you talked about the value of being the job providers and not job seekers, and how do you trust and jump into your idea if you have the conviction. That was wonderful. So now we have had the first round. I'm afraid we are running late, looks like. But I think maybe it's a good time to have your questions to the panel, and including panel members asking questions to the other panel members, a probing one, so that the ones that you forget to ask. So is there a microphone that somebody can hold around and ask? Yes, anybody who has a question, can you please raise your hand? And can somebody please? That's not working, huh? So I can check. Just identify yourself and then tell us who are you directing your question to. I am Hemant Jain, Director Private Limited. We manufacture LED lights. मेरा पुनीत जी के साथ क्यों फंसा रहे हो? पुनीत जी से वैसे काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होता है. काफ़ी बार हम फ्लाइट में साथ में होते हैं और मेरे को काफ़ी मोटिवेट करा है, बहुत बार मोटिवेट करा है. आपने जो बोला कि मना नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद मना करना चाहिए इसीलिए आप IIT में गए. नहीं, मैंने नहीं बोला मना नहीं करना चाहिए. किस चीज़ पे? किसी भी काम करने के लिए काफ़ी बार मना करने पे वो मोटिवेट होता है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा. नहीं, मना नहीं. अगर मैंने कहा था कि अगर लोगों ने मुझे मना किया कि तेरे से नहीं होगा तो मैंने उसको ट्राई जरूर किया, ये कहा था मैंने. बाकी तो व्हाट नॉट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू डू. आपको लिस्ट पहले वो बनानी चाहिए कि ये नहीं करना है आपको, और वो आपकी चॉइस है, सामने वाले की नहीं. समझे ना? तो मतलब तो आपको कोई मना कर रहा है तो हो सकता है कि वो मीडियोकर लेवल के लोग आपको मना कर रहे हो, तो मतलब आपको सुनने की जरूरत नहीं अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो. बाकी कंपटीशन वहीं से स्टार्ट होता है कि अगर किसी ने बोला है तू कर नहीं सकता, तो एक अंदर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये आता है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा.
जो लोकेंद्र जी ने भी करके दिखाया, पुनीत जी ने भी और राजकुमार जी ने भी करके दिखाया. थैंक यू. Great, thank you. Next question, at the end, lady at the back seat. Hi, I'm Vaishnavi and I'm a final year textile student and I'm interning at Avran. My question is that, okay, so at the initial stages of a startup, the team is generally very small. Easier to maintain relationships with the team, it's because like with the staff members or the employees. But as you scale up, expanding the team is inevitable. So how does your employee relationship change as you scale up, and how much does it affect the working of the entire company? Yeah, that's one. Who is your question directed to? The entire panel. The entire panel, anybody. Your question is, how does the employee relations change as the organization scales up? Is that the question? And how does it affect the working of the company? And how does it affect the working of the company? Anyone in the panel would like to pick it up? Let me Yeah. try and answer your question. And what you said is absolutely right. जब छोटा सा organization होता है, then you are very close-knit kind of family. Right? सबसे बात होती है पान की दुकान पे, चाय पे, खाने पे. And you have, as you grow, the challenges to चुनौती ये है कि आप वही relationship, वही motivation कैसे maintain कर सकते हो. तो उसके लिए HR के processes एक तो क्या है, आपको you have to get the right kind of managers, leaders. More than managers, you have to get leaders. There are difference between leaders and managers. Managers काम करवाते हैं. Leaders के लिए लोग काम करते हैं. सुबह से शाम तक 6 बजे के बाद भी 3 घंटा. Managers के लिए काम 9 से 5 करते हैं, 5 पे निकल जाते हैं. So first you have to get that kind of leaders in the company at the top level. Second, you have to then train those people, and that's where the role of HR starts coming, human resources. जैसे जैसे आपका organization बड़ा हो जाता है, you have to put processes and systems in place to engage with people, because distance होते जाते हैं, physical distances आप में और employees में होना चालू हो जाते हैं. And Johnson & Johnson have a wonderful practice in this, जो मैंने पूरे 16 साल use की है. Sitting in New Brunswick, they have a wonderful process. हमारा Johnson & Johnson का, हमारा, मैं अभी भी Johnson & Johnson को believe करता हूँ. It's a family I still belong to. तो हमारा एक credo होता है, belief है, एक values हैं. सबके होते हैं, सब अपनी vision, mission लगाते हैं. बस सवाल है उसके बाद, मेरा बड़ा crude सवाल होता है उसके बाद क्या करते हो? उसका अचार डालते हो क्या यार? डाल दिया आपने मिशन विजन पर, उसका करते क्या हो आप फाइनली? What Johnson & Johnson used to do is every 3 years is used to ask each company to take feedback from each employee, including the worker, कि वो हमारा जो credo, mission, vision है, वो हम कितना mission implement कर रहे हैं? Sorry? It's written in 1930s, World War I, General Johnson, and आज की तारीख में भी आप देखोगे तो उसमें जो लिखा है, admirable. But more important that, see, mission vision बनाना बड़ा easy है. पर उसको आपको implement करना, खाली उसको एक बरनी में रखकर नहीं रखना है, फाइलों में नहीं रखना, उसको जमीन पे उतारना है. और ये देखना है कि जो हमने 10 साल पहले लिखा था वो आज भी वैलिड है क्या? So Johnson & Johnson में we used to engage people like that. So even with workers we'll say, okay, अच्छा बताओ इसमें से हम क्या कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं. And out of that meeting there are a lot of action points कि सर आपसे तो मुलाकात ही नहीं होती है, आप तो अपने रूम में बिजी हो गए हैं, हम आप तक कैसे पहुंचे? And then you work out solutions in that meeting, and that makes your communication, engagement, and you measure. इसका जैसे आप में से हमारे पैनल में बता रहे थे कि इनका मेजरमेंट है on a 10-point scale. So the top management की रेटिंग होती थी कि क्रेडो के फीडबैक पे आपके एम्प्लॉइज कितना बोलते हैं फेवरेबल आपके बारे में. टॉप मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पीपल. आई एम ए फर्स्ट पीपल बिलीवर. एवरीथिंग कैन वेट, people come first. If you can get right people, if you can motivate people, if you can develop people, your business will have no limit. I don't know if I have answered your question. Thank you. Okay, wonderful. Then there is a lady next to her.
at the back. Then I come back to the gentleman in the middle. So while the microphone reaches the lady at the back, so Arunji is talking about people first, customers second. Yes. If you have won the people around in your company, they will go and fight your battle with the customers. Yes, go ahead, you Hello, ask your everyone. questions. Good morning, everyone. I am also a textile designer and interning at Cosby. So my question is, like everybody is talking about the successful story, but you must have faced any risk in your business or in your like whole journey. So I just wanted to know that at that time, did you like had your role, stick to your role at the risk? So the question she's asking is that we talked about all the successes. In fact, the panelist here is a distinguished panelist with great successes. But for every successful story, there are failures. There are a lot of startups which fail, and there's a lot of risk that goes into the business. So how does one deal with it? The whole idea of risk, and particularly if you don't do well, when do you say, I cut my losses and I stop this? I'm just expanding her question, taking the liberty. So Mr. Lokendra would like to... So just to answer your query, I don't know about others, but Wooden Street was not my first venture. Okay, so two of the ventures which I started actually got failed. But जो पहली company मैंने शुरू करी थी, when I was in a job in Delhi, the vision was very clear that okay, I want to do something. Majority of us are somewhere bound in a sense of insecurity. एक वो चक्रव्यूह आप कह सकते हो उसको कि job like जब मैं job कर रहा था तो 99% of the people working in that company, everyone used to think कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना है ना, खुद का कुछ शुरू करूँगा but वो पहला step लेना was really difficult. Quitting that job and starting a company itself was a difficult task. So somewhere you have to take risk, you have to be ready to कि आप fail भी होगे. I quit my job, I started a digital marketing company without any guidance, without any backup. Tried my first business for a couple of months, but that didn't work out. Then again I went to UK. I was again doing a job there. I started my second company there, and again I got failed. But but every failure there was a learning. I kept on learning that okay, मैंने first venture मेरा क्यों fail हुआ, मेरा second venture में मैंने क्या गलतियाँ करी, and then I started Wooden Street. So obviously every failure is a learning, and I believe that don't take it in a negative way. It is something which is which it will make you learn something. So Thank you. Puneet, you would like to add? मतलब मेरे हिसाब से मतलब फेलियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस. अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो मतलब इसमें जो बेसिक रीज़न होता है फेल होने का, मेरे हिसाब से जो हमको मतलब कौन सी क्लास में सिखाया फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट. ये हम भूल जाते हैं पूरे बिजनेस के अंदर कि अगर आपको प्रॉफिट हो नहीं रहा तो उस पर्टिकुलर बिजनेस को या उस प्रोडक्ट को हाथ जोड़ के बाहर निकलना जरूरी है. क्योंकि वैल्यूएशन गेम्स तो अभी आ रहे हैं, पर अगर आप एक नॉर्मल कंपनी रन कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं और उसमें अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो देयर इज नो वन टू फंड. हमको तो बैंक से भी पैसा नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है ना. तो आपको जो मतलब आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, आपको रिस्क रिड्यूस करनी पड़ेगी कि आप एक की जगह 3 प्रोडक्ट में रहो अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा तो. और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको स्केल करो, पर अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा, अब बिग नो थोड़ा और ट्राई कर लो, कोई वो मतलब स्ट्रेटेजी वो लिखा के कि क्यों नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा, पर फाइनली आपको उसको बंद करने का डिसीजन करेक्ट टाइम पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना. तो जितने भी मतलब बिजनेसेस या स्टार्टअप्स इंडिया में बंद हुए हैं, वो अच्छे प्रोडक्ट खराब प्रोडक्ट इससे उससे टीम से कुछ नहीं होता. फाइनली प्रॉफिट आना चाहिए जेब में और सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए खाली. तो उस पर आपको हर वक्त फोकस रखना है कि किसको कब बंद करना है. सिंपल है. Thank you. I think that's a wonderful advice, that don't fall in love with an idea so long that even if it continues to bleed, you have to get out at the right time. Yes, please go ahead. My name is Rajendra Rada. I am Vice President at Italica Molded Furniture. Please put your microphone close to your mouth. My Yes. question is from Arunji. How to build and retain team in a small city like Udaipur?
So it is very difficult to hire right people in Udaipur. आप जरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? How to get good How to quality build and retain team in Udaipur How to build a good team in Udaipur? and retain. and retain. Retain a team. अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। उदयपुर में टीम को सेलेक्ट करने के चैलेंजेस हैं, पर उसके साथ साथ आपको कुछ फायदे भी हैं। इफ आई टेल यू, उदयपुर की जो मैन पावर रेट है बॉम्बे से 1/3 है। बॉम्बे में मैं कंसल्टिंग का 30,000 रुपये दिन का लेता था 2007 जब मैं आया था। यहाँ पे मुझे बेस्ट मिला 10,000 रुपये। सो मार्केट की रेट यहाँ 1/3 ज्यादा कम है। और हम बनिए हैं सब यहाँ पे, मैं भी बनिया हूँ, तो हमें मालूम है किस तरह से सस्ते में हमें अच्छी से अच्छी चीज लेनी है। तो एक तो उसका एक फायदा है, पर उसका नुकसान भी है। अब इसमें आपको ये देखना है कि पहले तो मैं अच्छी टीम कैसे हायर करूं। इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप सीधा मार्केट से बने बने पके पकाए अच्छे लोग उठा सकते हैं, उसमें आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। यू शुड बी रेडी टू पे मार्केट प्राइस, बिकॉज किसी ने उन लोगों को तैयार किया है, उन्होंने उनको तैयार किया है, उनकी कॉस्ट आपको देनी तो पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं आएंगे। दूसरा ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और IIM उदयपुर इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपके लिए। यहाँ पे IIM उदयपुर के अलावा 2 अदर कॉलेजेस मैं IIM उदयपुर मैंने IIM उदयपुर 6 महीना पहले छोड़ा था। आज की तारीख में मैं SPSU के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे बहुत कमजोर वर्ग के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, IIM उदयपुर के 1/3 कॉम्पनसेशन पे जाते हैं इंडस्ट्री। ऐसी जगह जाके हमें सोना ढूंढना है। माइंस में जब हम जाते हैं तो हमें कचरा मिलता है, पर कहीं न कहीं सोना और चांदी भी मिलता है, वो हमें ढूंढना है, वो मिलेगा आपको। आज की तारीख में इवन इन इंस्टीट्यूट लाइक SPSU यू विल फाइंड वंडरफुल स्टूडेंट्स। तो ऐसी जगह जाके आपको सस्ते में अच्छे बच्चे अच्छे एम्प्लॉय, उनको फिर ट्रेन करिए, उसमें आपकी कॉस्ट कम रहेगी। दूसरा, अपनी ओन टैलेंट बढ़ाने में और ट्रेन करने में एक फायदा है, वो आपके साथ फिर जुड़े रहेंगे। रिटेंशन का एक तरीका और है, एंड द वंडरफुल एग्जाम्पल, और बहुत सस्ता तरीका है, पर थोड़ा उसमें दिल खोल के रिस्क लेनी पड़ती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं छप्पर फाड़ के पैसा आ जाए और मैं सोफे पे बैठा रहूं और सब होता रहे। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। घिसना पड़ता है, बहुत घिसना पड़ता है, तेल निकल जाता है। सॉरी टू यूज दैट वर्ड। तो दूसरा तरीका यह है, जैसे वंडरफुल option that a company like Procter & Gamble does is, Procter & Gamble में they get excellent output from even workers and they retain workers. Workers retention इतनी बड़ी challenge नहीं है। They use a simple technique called stock options. वो हर एक एम्प्लॉय को छोटे से छोटा पार्ट देके उसको कंपनी का मालिक बना देते हैं। क्या होता है उससे? उसकी सोच बदल जाती है। अब वो एम्प्लॉय नहीं है, एक छोटे से पार्ट में मालिक, और वो उस तरह से काम करता है। और वो फिर आप मेरे पास जॉनसन & जॉनसन ने मुझे दिया, मैं 4 साल के बाद मैंने कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कर दिया कंपनी को, तो मेरे को कंपनी ने स्टॉक ऑप्शन दे दिया। वो मेरे पाँव में सोने की जंजीर बन के 16 साल पड़ा रहा, निकालने में बड़ी दिक्कत। ये एक बड़ा सस्ता, आपको रोज का कुछ कैश नहीं जाएगा, जमा होता रहेगा आपके अकाउंट में, उसके अकाउंट में, वो कभी जाएगा भी नहीं, और जब भी जाएगा तब की देख लेना, और तब तक आपका वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा, उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, और वो एक सस्ते में आपका रिटेंशन हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं रिटेंशन करने के लिए, पर एक मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ। आप अगर और डिटेल में पढ़ना चाहें कि हाउ टू रिटेन पीपल, www.enrichmenters.com पे जाइए, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उसमें एक आर्टिकल है हाउ टू हायर बेस्ट पीपल, हाउ टू रिटेन बेस्ट पीपल, एंड ये मेरे 26 साल के एक्सपीरियंसेस, मैंने अपने अनुभव उसमें शेयर किए हैं। देखिए, कुछ काम आ सकता है। हेलो, धन्यवाद। यस, गो अहेड। माय क्वेश्चन फ्रॉम लोकेंद्र सिंह। आप की लाइफ में कौन आइडियल पर्सन था जिसकी जो आपके इस सारी स्टोरी आपकी सक्सेस का, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको चाइल्डहुड से जानता हूँ, और वो सीक्रेट आप मुझे बताएं, ऐसा कौन आदमी है जिसकी वजह से आप इतना ग्रो किया? सो सर, मेरे आइडल पर्सन मेरे फादर है। सो आई हैव ऑलवेज सीन हिम टेकिंग रिस्क। सो वी बिलोंग टू ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली। ही वॉज ए नेवल ऑफिसर। हमारी स्कूलिंग्स भी जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी,
गोवा से, बॉम्बे, KV, आई एम ए KV kid. So he always motivated me and he always pushed me. When I was in job, I worked for almost 11 years before starting any of my venture. I was based in Delhi, then my last job was in London. So वहाँ पे लंदन में हम लोग बहुत अच्छे से सेट थे. My wife, my kid was with me. I was getting a hefty amount of good salary. I was a part of Birlasoft UK. मुझे बहुत ट्रैवल करने को मिलता था, अच्छा सीखने को मिलता था. I got opportunity to US, France, like wherever I want to work. But my father always pushed me कि अगर you will not take this risk, and I used to discuss with him कि डैड मुझे कुछ ना कुछ करना है खुद का. जब भी मैं चित्तौड़ आता था, जब भी मैं उनके साथ बैठता था, तो उन्होंने बोला कि बेटा ये चक्रव्यूह है, तोड़ना तुम्हें ही है ना. अगर और यू नो राइट टाइम पे राइट डिसीजन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अगर आप 3-4 साल और लंदन में इसी जगह पे रहे तो आई थिंक यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन वेर यू कैन टेक दिस रिस्क. यू वॉन्ट टू क्विट दिस, स्टार्ट योर ओन, सो बेटर डू इट राइट अवे. I called him to London. He was with me when I put my resignation. So जब मैं resign करके आया उस टाइम पे there was no base. मतलब कोई idea था definitely, but कोई financial backing नहीं थी, कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हाँ वहाँ जाके मुझे कुछ शुरू करना है. But he was always there कि ओके कुछ नहीं होगा तो इतना experience है, वापस जॉब कर लेना, नहीं तो गांव में ज़मीन है, खेती है, बहुत सारी चीज़ें हैं. So I think it was like he was always there and he motivated me, and that's why I was able to take that step. So Thank you. Any other probing question that you have? Yes, please go ahead. Myself, CA Yash Kunawat, partner Kunawat and Associates. My question is, for every business there are two aspects. One, internal team. Second, the customer. How to get that customer acquisition and customer retention? This is the first part. And the second is, today's topic is thinking big and making it happen. We have a thought. How to channelize that thought into a proper way? जैसे राज सर ने बताया कि पान की दुकान पे 5 लोग खड़े होते हैं तो उनको वो कूद जाते हैं. How to get that कि एक बार कूद जाए to start a business? To who your question is directed to? Entire panel. Entire panel. So yes, please anybody like to. Yeah. मिस्टर कुणावत, आप जो कह रहे हैं ये मीन्स या इंस्टिक्ट्स अंदर से आती है. रिस्क टेकिंग एपेटाइट इज इनबिल्ट. आप उसको बना नहीं सकते, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, वो आपके अंदर है. तो वो आप में वो जुनून है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे में है जुनून. अगर मैं गिरा तो मैं फिर से खड़ा होने की मेरे में काबिलियत है. आप गिरो लेकिन आपको वापस आप या खड़ा जरूर होना है, तो ही आप आगे से आगे आप या ग्रो करोगे. एक बार गिरे, फेल हुए, हार गए जीवन में, तो आगे फिर कुछ नहीं है. I want to add one more thing. Yeah, please. When we are talking about, getting more customers, I would focus on scaling up. अभी हम लोग बहुत सारे, like I am a part of TIE also, and we keep on interacting, with young entrepreneurs and like existing businesses. So कई बार मुझे लगता है कि एक sense of insecurity हमारे अंदर होता है कि why to onboard an investor, why to, as Arun sir suggested that to scale up you need a team. और टीम आपको अच्छी बिल्ड करनी है तो you have to bring someone on board, you have to share revenue, and you have to आपको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स आपको बांटने पड़ेंगे. तो majority of small and mid-sized businesses, they are somewhere stuck के whether we should bring investors on board or not, whether we should go for taking investment or not. अगर जैसे ही मैं इन्वेस्टमेंट लूँगा ये कंपनी मेरी नहीं रहेगी, कोई और भी इसमें भागीदार बन जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है जो ज़्यादा कर छोटे और मिड साइज बिजनेसेस को स्केलिंग अप या एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ में रोकता है. एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जब हम शुरू कर रहे थे, जब व्हेन वी वेंट टू इन्वेस्टर्स, ये चीज़ हमारे दिमाग में भी थी कि क्यों ना वुडन स्ट्रीट को हम खुद ही एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, ये हमारी खुद की कंपनी रहेगी, 100% शेयर होल्डर्स हम रहेंगे.
लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अगर वो स्टेप वो सोच हमारी बहुत गलत थी। आज जब इन्वेस्टर्स जुड़े, वो गाइडेंस मिली, डेफिनेटली यू वुड ऑलवेज नीड एक other than guidance, you would always need funds to acquire the open market. You cannot achieve everything on your own. So that is also one dilemma I would which we need to break. Puneet ji, you have something to add? Yeah. मुझे पूछना है आपकी एज क्या है? आप कितनी बार फेल हुए अभी तक? मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत है। आपकी एज में आपके पास बहुत टाइम है बहुत सारी चीज़ ट्राई करके फेल होने का, ठीक है ना? अभी अगर आप अभी से डरोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा ही नहीं कभी। तो और आपको उन्हीं से सजेशन लेने हैं जिन्होंने कुछ किया हो जो आप करना चाह रहे हो। तो गलत लोगों से सजेशन लोगे तो आप कर नहीं पाओगे कभी भी, आपको डराया जाएगा, ठीक है ना? तो अभी आपकी बहुत एज बची है, खूब जी भर के फेल हो मेरे हिसाब से, तो वो लर्निंग आपको बाद में काम आएगी हमारी एज में। Great, thank you. Gentleman at the back there, yes, you. Can somebody get, no, you sit down. I'll come back to you in a moment. Gentleman with the coat there, yes. Can somebody give me the microphone, please? नमस्कार सभी को। मैं उमेश मैनारिया स्माइल इंटरनेशनल से डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट हूँ और ट्रैवल एजेंट हूँ। थैंक यू सबसे पहले तो सिंगल साहब को कि आपने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जिससे हम गुजर रहे थे आपने पहले ही सोल्व कर दी, पहले आते बिना किसी क्वेश्चंस के। ये तो थैंक यू सो मच कि आपको लोगों को ट्रस्ट करना होगा और आना होगा। लेकिन सर मेरा एक सवाल ऐसा है कि आफ्टर स्कूलिंग आई स्टार्टेड डूइंग जॉब और पिछले 10 साल में 6 साल जॉब करते हुए मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने नाम की प्याऊ भी नहीं बना सकता हूँ। तो ऐसा करना शुरू किया कि भाई माई फादर हैड नो प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी इशू था ही नहीं। और मुझे ये समझ आया कि कुछ करना चाहिए, तो ज़ीरो से स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं था। तो जब हम लोगों को हायर करें, उनको ट्रेन करें, जैसा कि आपने बताया, तो ये फियर हमेशा रहता है कि उनको ट्रेन करने के बाद वो हमारा कॉम्पिटिटर ही बन गया। तो ऐसे में ऐसे लोगों को फाइंड कैसे करें, एक पहली बात तो ये, और दूसरा उस कॉम्पिटिटर बनने से किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, या बन जाए तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और इसका आंसर आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट ही इज द वर्गो के जो चेयरमैन हैं, क्या नाम है उनका, 2 सेंटेंस मेरे को याद आते हैं। उन्होंने ये कहा कि हायर द बेस्ट पीपल एंड ट्रेन देम सो हार्ड दैट दे विल, एवरीवन इन द इंडस्ट्री वुड लाइक टू टेक देम। आप इतने अच्छे आदमी लो और उनको इतना अच्छा ट्रेनिंग दो कि दुनिया उनको लेना चाहे आपके जैसे। फिर बोला उनकी इतनी अच्छी देखभाल करो कि आपको छोड़ के कभी जाए नहीं। सिंपल। अब आप वो कैसे करना है, तो एचआर के लिए आपको चाहिए, टेकिंग केयर ऑफ पीपल इज ए सिंपल जॉब। कैसे हो, क्या है, हम सब अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं तो पूछा था कितना टारगेट अचीव किया, कभी पूछते हैं यार घर में कैसे हैं, कौन है, सब ठीक है। आप काम से हटके उस पे फोकस करो। एंड आई वांट टू टेल यू वन, मेरा गुरु है इसमें जिसने मुझे सिखाया। मैं सेल्स डायरेक्टर था, मैं मार्केटिंग डायरेक्टर, हम दोनों साथ बैठते थे। अच्छा दोस्त है, मेरे से 2 साल जूनियर, आई एम बैंगलोर से है, बट एक तरह से मेरा गुरु हो गया इस मामले में। वो अपनी ब्रांड मैनेजमेंट टीम के साथ मिल मिला के आया, बोला मैंने बहुत बजाई इनकी यार। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा किया, और बजा, काम करा इनसे। मैंने बोला तो फिर काम कैसे करते यार? मैं उनको बोल के आ गया, देखो बिजनेस लाना तुम्हारा काम है, पर तुम्हारी देखभाल करना मेरा काम है। मेरा काम बिजनेस लाना नहीं है। ऐसे दैट्स अ वंडरफुल थिंग। एंड मैं तब से जब भी जाता हूं बोलता हूं यार देखो, आई डोंट टेल देम तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम नहीं है। आई सेड माय जॉब इज टू टेक केयर ऑफ यू, योर जॉब इज टू टेक केयर ऑफ द बिजनेस। एंड इफ यू कैन जेन्युइनली डू दैट, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। आप लोग कहां मिलते हैं ऐसे लोग जो अपने एम्प्लॉयज की देखभाल करते हैं? सब अपने पैसे पे लगे रहते हैं। And again, to add one more thing, see, again it's an insecurity. Don't be, that कि भाई अगर मैं अच्छा कोई पर्सन लाऊंगा, कल को ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाए या ये भी वही बिजनेस शुरू कर दे। See, it will always happen. Binny Bansal and Sachin Bansal, they used to work in Amazon, then they started Flipkart. Now the people who used to work in Flipkart, they started Udaan, the leading unicorn. So it will always happen कि हो सकता है
कोई केपेबल इंसान आपको ज्वाइन करे और आफ्टर 4-5 ईयर्स ही माइट स्टार्ट सम अदर वेंचर, बट वो 5 साल आप उसके साथ उसका यूटिलाइज करके क्या आप अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो क्या? दैट शुड बी अ थॉट। अदरवाइज अगर आप हमेशा डरोगे कि नहीं यार मैं अच्छा बंदा लाऊंगा और ये, तो यू विल नेवर बी एबल टू स्केल अप, यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो। सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट कि 5 साल में मुझे इस कंपनी को 20x 50x कैसे ले जा सकते हैं। 5 साल बाद कौन जाता है वो उसकी बात की बात है। आप उस टाइम तक इतने बड़े हो चुके होगे कि आई थिंक यू विल हार्डली केयर अबाउट दैट। टू ऐड देयर, अगर वो 5 साल बाद जाता भी है ना, तो आपका और उसका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, वो आके बोला सर ये एक आइडिया है, उस पर मैं काम करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। आप बोले यार आइडिया बहुत अच्छा है, चल एक काम करें अपन दोनों मिलकर काम करें इस पर, तू काम कर मैं फंड करता हूँ। दिस इज द मॉडल ऑफ सम ऑफ द वेरी सक्सेसफुल कंपनी इन यूएस। दे हायर द बेस्ट पीपल, दे सिंपली इन्वेस्ट। एंड वॉरेन बफे क्या करते हैं? वॉरेन बफे पिक्स अप द बेस्ट बिजनेसेस, लीव्स देम एज इट इज, सिर्फ फंड करते हैं। तो आप अगर बड़े हो जाओ तो आपके पास पैसे की ताकत आ जाएगी, जो आम छोटे मोटे बच्चों में, नए स्टार्टअप्स में नहीं होते, उनमें जुनून होता है, काम करने की स्किल होती है, उनको सपोर्ट करो एंड इट कैन बी विन विन। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वर्किंग आउट, लिसनिंग टू देम हैविंग कॉन्फिडेंस। बिगेस्ट थिंग इज ट्रस्ट। क्या लोग आप में विश्वास करते हैं? क्या आपने बोला मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, आप देखभाल कर रहे हो या अपनी देखभाल कर रहे हो? Great, thank you. Yes, the lady at the end, then I come to gentleman. Sorry, the gentleman in the middle, then I come to the lady. at the- Sir. No, let me moderate it. Yes, gentleman at the middle. No, white shirt, yes. Sorry, because I had said that we'll come back to him. Okay, she has the microphone, so go ahead. I'll come back to you. Yeah, I represent Sadhana. I'm the CEO of Sadhana, a social enterprise working with 700 women artisans. I don't have a question, but I genuinely want you all to join us in our advisory board because we are not business people. We are all social enterprises who struggle to understand business and at the same time manage, social welfare. And we've been stagnated in our business for many years now, though, we are popular and known as a brand that is genuine and eco-friendly and, concerned about employees. So can you please join us on our advisory board and help us grow? Is a request I bring. Yeah. Shark Tank. And how do I follow up on it is something I want to know. Thank you. Wonderful idea. Social enterprises need business ideas, I think, and that's where the request from her comes, that Sadhana needs power-packed people like on the panel. And Puneet, you would like to respond? सर मुझे ना लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। अच्छा, जो सर ने पूछा था, मेरे को ये पूछना है कि आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? वो रिटेंशन को बाद में देखते हैं एक बार। अगर आपके प्रोडक्ट में यूएसपी नहीं, कुछ यूनिक चीज़ नहीं है, तो आपको ये डर हर वक्त रहेगा। आपको आपका फोकस, मतलब कचौरी वाला भी स्पेशल चटनी बना के उसकी यूएसपी क्रिएट कर देता है, तो हर बिजनेस में हो सकती है, ठीक है ना? अगर आप यूएसपी क्रिएट नहीं करोगे तो आपका हर चौथे दिन एक कॉम्पिटिशन खड़ा होगा। बाकी एडवाइस तो लोगों की आई गई है कि आपको लोगों को रिटेन कैसे करना है, कहाँ से लाना है, क्योंकि कोई भी कल्प वृक्ष से मिलेगा नहीं और एम्बिशियस बंदे को आप बहुत ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकते। तो आपको जो करना है, आपकी यूएसपी पे फोकस करना है। अगर यूएसपी नहीं है तो यू हैव स्टार्टेड द बिजनेस टू क्लोज इट डाउन सून, मेरे हिसाब से। You go ahead. Thank you. सर गौरव जैन एंड आई रिप्रेजेंट पेटान कूलर्स। मेरा क्वेश्चन लुकेंद्र जी से है कि सर आपने कमोडाइज बिजनेस में एंट्री किया 2015 में डिजिटली, तो जो फर्नीचर को एक काफ़ी बल्कि प्रोडक्ट होता है, उसको आप पैन इंडिया सप्लाई कर रहे थे, तो उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट था उसको आपने आपकी कंपिटिटर के अगेंस्ट अपने प्रॉफिट मार्जिन में कैसे सेट ऑफ किया? दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर ऑल्सो फेसिंग, मीन्स क्योंकि आपकी कॉस्ट लॉजिस्टिक की ज़्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट के कंपेयर में। So yeah, initially logistic being furniture being a bulky item, logistic cost भी ज़्यादा थी और उसको सप्लाई करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बिकॉज वी वर नॉट इनटू B2B, वी वर इनटू B2C। अगर हमें आज भी अगर हमें 10,000 ऑर्डर्स महीने के आते हैं, तो वो 10,000 सारे फर्नीचर हम अलग घरों में कहीं पे 20वीं मंजिल पे चढ़ा रहा है कोई, बॉम्बे बेंगलोर टाइप के। सो वो एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू था। शुरुआत में जब हम 2-4 फर्नीचर पीस, जब ऑर्डर्स कम थे, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। बट जैसे ही हमारा स्केल एडवांटेज जिसको आप कहते हो, कि जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़े,
तो शुरुआत में जब हम जोधपुर से कोई भी कंटेनर या ट्रक हम पार्ट लोड में भेजते थे तो हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आती थी। उसको कम करने के लिए हम ये करते थे कि ऑलरेडी जो जोधपुर से बहुत सारे वी आइडेंटिफाइड सम ट्रांसपोर्टर्स जो जोधपुर से काफ़ी दाल पल्सेस बैंगलोर जाती है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ट्रक में 2 फीट तक जब आप पल्सेस भर देते हो तो उसका एक लोड फिक्स हो जाता है। तो वी टाइड अप विद दीज गाइस कि भाई आप पल्सेस के ऊपर क्या हम अपना फर्नीचर रख सकते हैं क्या। तो हमने कॉस्ट वहाँ पे शेयर किया। गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़े, स्केल बढ़ी, तो नाउ वी हैव अराउंड 5 to 10 कंटेनर्स मूविंग एवरी डे फ्रॉम जोधपुर। सो जब आप स्केल एडवांटेज आ जाता है तो आई थिंक वो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। Thank you. Yes, go ahead. Yeah. Hi, सौरभ सिंघवी, co-founder स्पेक्ट्रम टेक एंड फेयर। सर, बाय प्रोफेशन मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं पेस्टिसाइड इंडिया में सर्व कर चुका हूँ प्रोजेक्ट्स में और प्रोसेस में। उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ के बिजनेस में आया। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने उदयपुर इंडस्ट्री को देखा कि जब एंटरप्रेन्योर होता है, जब मैं प्रोजेक्ट्स के लिए लोकल इंडस्ट्रीज़ के पास जाते हैं हम लोग, तो सबसे बड़ा कॉमन हमारे साथ प्रॉब्लम हमारे साथ ये आता है कि हम जब कोटेशंस देते हैं हमारे, तो हमारी रेट्स हायर आती है और जो हमारा जो क्लाइंट होता है हमको बोलता है यार आपकी रेट्स ज़्यादा है। तो सर हम बोलते हैं कि आपने सर टेक्निकल कंपेरिजन किया है क्या? तो आपने कंपेरिजन किसके बिहाफ पे किया, रेट्स के बिहाफ पे किया या टेक्निकल कंपेरिजन किया? तो जनरली हम जो प्रोजेक्ट्स हमारे लूज होते हैं वो रेट्स के बिहाफ पे होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोकल कंपेरिजन होता है। जो फैब्रिकेटर्स होते हैं वो रेट्स कम देते हैं और हम टेक्निकल साइड से थोड़ी रेट्स हमारी ज़्यादा आती है। तो इसको कैसे मीट आउट किया जाए कि हम प्रोजेक्ट्स को गेन कर सकें? तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग मतलब लोकल फैब्रिकेटर से हम कैसे हमको एडवांटेज कर सकें हम लाभ को। Did you get his question? मतलब मुझे पूछना है आपसे कि आपका प्रोडक्ट और लोकल प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है या उसमें कोई हम लोग वी आर इन द फील्ड ऑफ द पीस इंजीनियरिंग बिल्डिंग में शेड्स वगैरह बनाते हैं हम लोग। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा फीचर है क्या जो उस प्रोडक्ट में नहीं है जो लोकल बना रहा है? लोकल लोग भी बनाते ही हैं, शेड्स वगैरह बनाते ही। तो आपको मार्केट चेंज करने की जरूरत है। ओके, अगर बिल्कुल सेम है तो आप नॉर्थ ईस्ट जाके बेचो जहाँ कंपटीशन कम रहेगा। मतलब समझ रहे हो आप कह रहा हूँ? ओके, अगर यहाँ पे आप वो चीज बना रहे हो, उदयपुर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप वो चीज यहाँ बना रहे हैं, नहीं जस्ट बता रहा हूँ एग्जाम्पल है, वो तो वर्ड मत सुनो। अगर आप वो चीज बना रहे हो जो लोकली कोई भी बना सकता है और कोई भी डिफरेंस नहीं किसी, मतलब देयर इज नो यूनिक स्पेसिफिकेशन, तो आप थोड़े दिन ही बेच पाओगे या फिर आपको कुछ स्पेशल सर्विस, मतलब अगर उसके अराउंड भी प्ले नहीं हो रहा तो आपको ये रीजन छोड़ के कहीं और बेचना पड़ेगा या प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। यूनिकनेस तो है, इंजीनियरिंग तो है, उसके अंदर इंजीनियरिंग होती है, बट क्या होता है क्लाइंट इंजीनियरिंग को समझना नहीं चाहता है, क्लाइंट सिर्फ कॉस्टिंग को ही समझना चाहता है। तो उस केस में क्या करें? देखिए, अगर ब्रॉडली 3 तरीके होते हैं अपना सामान कंपटीशन के बजाय बेचने के लिए। या मोटी मोटी बात है, सिंपल, मुकेश अंबानी ने समझा कि अगर मैं 5 पैसे सस्ते दूंगा तो दुनिया मेरे पास लाइन लगा के खड़ी हो जाएगी, और उनके पास जनता लाइन लगा खड़ी हो जाती। ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन समझा कि अगर मदर्स को जो चीज़ चाहिए वो हम देंगे तो मदर्स हमारे पास लाइन लगा के खड़ी हो जाएगी। तो आपको पहले ये देखना है कि मेरे को किस तरफ जाना है। अगर आपको सुपीरियर प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसी चीज़ में बनाना है जिसके आपको क्लाइंट चाहता है। अगर क्लाइंट कुछ चाहता है और किसी चीज़ में आप सुपीरियर हो तो उसके लिए उसकी वैल्यू 0 है, फिर वो रेट पे ही बेचेगा। तो क्लाइंट को समझना और उसकी ज़रूरत समझना और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाना। तो मे बी ही इज़ राइट, आप शायद गलत क्लाइंट के पास जा रहे हो। आप 100 क्लाइंट देखो, आप उनकी ज़रूरतें समझो और सोचो किसके लिए मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेबल है। 100 में से 5 ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिए आपका प्रोडक्ट सूटेबल, उनके पास जाओ, भले ही वो उदयपुर में हो या नॉर्थ ईस्ट में। समझे कुछ? डज इट मेक सेंस? गॉट इट। या, थैंक यू। Right, yes, please go ahead. Yes, go ahead. I must say that I love the enthusiasm of the audience in asking questions, so that shows there is so much hunger to learn, and I am so thankful for the panelists to come spot on answering your question. Thank you so much. Go ahead. सभी को नमस्कार। अचल अग्रवाल है। I am CEO of a bulk drug active pharmaceutical ingredients manufacturing company in उदयपुर। ये बेसिकली हमारा 4 जनरेशन पुराना बिजनेस है। आई एम द 4th जनरेशन। लास्ट 13 साल से इसे मैं देख रहा हूँ। मेरे पिताजी थे तब तक इट वाज काइंड ऑफ अ वन मैन शो, मतलब वो सभी कुछ वही थे। एंड ही वाज अ जीनियस, मतलब R&D भी वही थे, सेल्स भी वही थे, अकाउंट्स भी
वही थे, इस तरह का था। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि इस तरह से ग्रो नहीं हो सकती। तो मैं आज यहाँ खड़े होकर कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी पैसा कमाते थे, लेकिन मैं पैसा नहीं कमाता हूँ। मेरे आदमी हैं, जो मेरा स्टाफ है, जो लोग हैं, वो मेरे लिए पैसा कमाते हैं। Great. And So I'm ask your proud question. of- हाँ, नहीं थोड़ा सा तो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन Yeah. मैं आपको समझा रहा हूँ जो मेरी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास बहुत अच्छा विजन है, हमारी प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छी है और बहुत ही निश मार्केट में हम काम करते हैं। तो ग्रोथ ऐसा कोई मतलब प्रोडक्ट या हमारे बिजनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है कि आज की तारीख में अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, R&D है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, और सभी लोग अच्छे भी हैं, बहुत यंग टीम है, मतलब 40 साल का भी कोई नहीं है मेरे यहाँ पे। मैं खुद आई एम 36 ईयर ओल्ड। बट जो प्रॉब्लम है ये है कि ईगो इश्यूज है बहुत ज़बरदस्त, और एक हमेशा एक अनसेड एक युद्ध चल रहा होता है इंटरनल, और उससे जो है मैं कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि समझ आता है यार ये बंद कर देना चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे को तो आपको ऐसे लगता नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कमाने की। तो यार ये इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। हर जना जो है ये दिखाने की कोशिश करता है कि मतलब मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, और वो कर भी रहा होता है उसका काम, लेकिन वो दूसरे का काम को रोकने की मुझे समझ आ रहा होता है कि वो ट्राई कर रहा है कि कैसे भी करके दूसरे का काम रोकना, कहीं उसका अच्छा नहीं दिख जाए। मतलब ये मेंटालिटी है कि यार वो उसके नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, मतलब इनके आगे, बॉस के आगे, तो वो उसका काम को कैसे भी कमियां गिनाता है, करता है, और सब इंटरकनेक्टेड है। आप सबका काम मिलजुल के ही, मेरा तो प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट है तो R&D डेवलप करेगी उसको, और बहुत जैसे हमारी इंडस्ट्री में हाईली रेगुलेटेड है तो देयर इज लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कहीं भी कमी निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दे डोंट वर्क टुवर्ड्स द गोल। Get your question. You're talking about how do we resolve conflicts within the organization, ego issues, domain issues, and how to advance the goal of the company as a whole and not the department, right? Yes. So, esteemed panels would like to pick this. अचल, मैं आपको सबसे पहले तो बधाई दूं कि आपने पूरा प्रोसेस को डेलीगेट किया, ये बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक यू। इशू ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू टॉक टू मिस्टर अरुण। इनको आप ले लो अपने बोर्ड पे और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके या रिजॉल्व कर देंगे। प्लीज पुनीत जी, गो अहेड। मतलब आपने ये लोगों के जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रखे हैं क्या, किस आदमी को क्या करना है? बिल्कुल डिफाइंड है, मतलब किस आदमी को क्या करना है, और इनका इंटरलिंकिंग पता है आपको कि कौन से डिपार्टमेंट का हैंडओवर टेक ओवर जब होगा तो किस पार्ट पे वो, मतलब आपने हैंडओवर टेक ओवर, जॉब डिस्क्रिप्शन और ये सब चीज बना रखी ऑलरेडी जी, कर रखी है। देखो मैं आपको और ईगो है ना, करते ईगो जा रहे हैं। आदमियों मतलब बंदों में खत्म नहीं हो सकता, उसको रहने दो आप, क्योंकि हम ईगो के कारण ही जानवरों से अलग है। इसको पॉजिटिव वे में देख ली जाए तो ठीक है ना। तो ईगो तो रहेगा लोगों में। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको एक अच्छा कल्चर डालना है, और कल्चर डालने के लिए आपको कल्चर वर्ड भी एक ब्रॉड वर्ड है, इसको कैसे डाला जाता है कोई नहीं बता पाएगा आपको, पर आपको है ना मतलब जो HR पे वर्क करना है, मेन HR डिपार्टमेंट का लड़का मत लेना, उसके लिए कुछ नहीं कर सकेगा वो। आपको जो वर्क करना है कि आपको किस डिपार्टमेंट से क्या काम करवाना है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली लिखा होना चाहिए, और उसको उसी चीज़ की सैलरी मिलनी चाहिए, बजाय कि आपको कंप्लेन करने की। अगर आप इतना सा कर सकते हो, मुझे डाउट है कि आपने पेपर पे सही किया होगा, मतलब आके कभी मुझसे भी मिल लेना, मतलब फ्री कंसल्टेंसी है मेरी तो। आई डोंट चार्ज अ पेनी। सॉरी सर 20,000 कुछ नहीं, फ्री। आप आओ, इस पे मैं पूरे दिन का लेक्चर दे सकता हूँ। हमने ये अच्छा सेट किया है, और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरी कंपनी का, कि हम निश मार्केट में जहाँ क्वालिटी रिक्वायरमेंट 25 साल की वारंटी देते हैं हम प्रोडक्ट पे, उदयपुर के लोगों से कैसे बनवाई जाती है जब मैं शॉप फ्लोर पे उतरता भी नहीं हूँ, तो इस पे मैं लेक्चर दे सकता हूँ। लेक्चर मतलब डिस्कस करते हैं 1 to 1। बिल्कुल बॉस। जस्ट टू ऐड, ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड जब भी आप 100 लोग 200 लोग एक साथ काम करते हो तो ये सारे इश्यूज आते हैं। एज पुनीत सेड दैट राइट HR प्रोसेस एंड KRAs एक्चुअली डिफाइन क्या किसको क्या करना है, तो दोज प्रोसेसेस विल रन द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग फॉरवर्ड। सेकेंड इज के आप बहुत ज़्यादा सुनो मत अगर आप किसी को बुला के कोई भी अगर आपके पास में, यू हैव टू क्रिएट दैट ऑरा कि अगर आप कंधा बन रहे हो तो 100 लोग रोने आएंगे क्या, अच्छा इसको सिखा। बेटर है जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क एंड ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट के बॉस यहाँ पे शिकायती लाल नहीं चाहिए, सब अब लोग अपना काम करें। जैसे ही
अगर आप एज ए मैनेजमेंट या एक फाउंडर अगर शिकायतें सुनने में घुस गया तो हर जने के पास शिकायत है, हर मतलब ऑफिस बॉय से लेके आपके मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, एवरीवन कैन क्राई यू नो ऑन एनी टॉपिक. इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन वर्क. आप अपने फोकस पे करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक इन्वायरमेंट बन जाएगा कि यार ये तो सुनता ही नहीं है, छोड़ो, इसके पास जाना ही नहीं. सो आई थिंक that can also be another approach. But I think right is that I think a right HR processes and well defined KRAs will run the organization. मतलब थोड़ा मैं डिफर करूंगा इससे. इनिशियली आप जिसको जो शिकायत करनी था नोट कर लो कितने टाइप की शिकायतें होती है, उसके अराउंड एक सिस्टम बनाओ और फिर शिकायतें सुनना बंद कर दो. नहीं तो आपको लोग बताएंगे ही नहीं कि चेंज क्या करना है. तो आपको इनिशियली तो सुनना पड़ेगा. एक महीना का कि तेरे को जो शिकायत आ रही है जिस डिपार्टमेंट से बता किस किस टाइप की प्रॉब्लम है, उसको आप स्टेट कर लिख लो उसके अंदर कि इस डिपार्टमेंट को इस डिपार्टमेंट से ये प्रॉब्लम आती है. 17 आपको 17 ही तो सॉल्व करनी हुई एग्जाम्पल. तो पहले लिखना पड़ेगा, उसके लिए सुनना पड़ेगा. उसके बाद जब आप उसका एक सिस्टम बना लोगे कि ये चीज़ आगे से ऐसे होगी और फ्लोट कर दो, उसके बाद सुनना बंद कर दो जो आपने कहा है और सॉल्व होना चालू होगा. सबने किया है, मतलब अमेरिकन कंपनीज ने भी किया, हम भी कर ही रहे हैं. अपने लेवल सब होता है, ऐसा नहीं कि वो सबके पास ईगोइस्टिक लोग ही, पर हमारे पास ज़्यादा है. आपसे मैं कह रहा हूँ. मेरे पास आपको सोल्यूशन देने के बजाय एक सवाल है. जी यस सर. आप उनकी जो उनको आप पे करते हैं जी, उनका कोई साल का गोल होता है. यस. वो उनके डिपार्टमेंट का ही होता है या किसी और चीज का भी होता है? आप उनको किस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? अपने काम के लिए? उनके काम के लिए. उससे निकलो. मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था. 70% मेरे पास बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स थे, सेल्स, मार्केटिंग, HR, और मैंने मेरे बॉस से सीखा. वो क्या करते थे, अब मेरे गोल में मेरी कंट्री का गोल और 30% वेटेड फॉर द रीजन, एशिया पैसिफिक का गोल डाल दिया. तो मैं जिम्मेदार मेरे गोल के लिए भी हूं और उनके एशिया पैसिफिक के लिए भी हूं. क्या आप वो अपने काम में कर सकते हो कि तुम्हारे फंक्शन की जिम्मेदारी है, पर मेरे को ओवरऑल जो मेरा काम है उसका भी 30% वेटेज तुम्हारा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल कर सकते हैं सर. आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो जाएगा. ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स बेस्ड अगर हम बोनस स्कीम दें, हाँ, कि आपका टारगेट अकेला पूरा होना काफी नहीं है. दूसरा, उनके साथ शाम को आप खाने पीने के लिए पिछली बार कब बैठे? साल में 1-2 बार करते हैं, पर्टिकुलरली पीने के लिए. आप, मैं अपने डायरेक्टर के साथ गोल्फ क्लब में गुड़गांव में हर महीना बैठता था. वहां जो हम काम करते थे वो 29 दिन नहीं करते. जो डिसीजन हम वहां लेते थे, जो टीम वहां बनती थी दारू के 4 पैक पे, 2 पैक पे, वो कहीं नहीं बनती भैया. सही, 100%. थैंक यू सो मच. थोड़ा अगर आप पीते नहीं है तो पीना सीख लीजिए, बहुत जरूरी है. मेरे को मैंने जब हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन किया था तो मैं पीता नहीं था. तो मुझे मेरे बॉस ने बोला यार पीना चालू कर, लोगों के साथ काम करना है. तो यस, गो अहेड. मैं प्रकाश बोलिया. मेरा इनिशियली करियर मैंने जॉब से शुरू किया और साइमल्टेनियसली बिजनेस शुरू किया. मेरा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जिसमें फार्मा, होलसेल, C&F से हैं. उसके अलावा रिलायंस गैस की, रिलायंस डीजल की इंडस्ट्रियल मार्केटिंग की भी काम है अपने पास. तो मेरे को जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि जब बिजनेस शुरू किया स्टार्टिंग में, तब से लेके एक रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉइज क्रिएट हो जाती है. तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक जो गैप है वो कम हो जाता है और वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी एक हमारे ऊपर जैसे एक लाइबिलिटी हो जाती है कि हमको ही सॉल्व करनी, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम आई वो भी. तो इससे मुझे एडवांटेज भी काफ़ी मिला है. लेकिन जब स्टाफ बढ़ता है और साइज बढ़ता है, बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, तो इतनी प्रॉब्लम्स दूसरी मतलब इस टाइप की आ जाती है जो अपना मेन फोकस बिजनेस से हट जाता है या उसके लिए बहुत कम टाइम बचता है. और एक जो सर्विसेज उनको दी हुई है, अगर वो हमने इतने सालों से कंसिस्टेंटली दे रहे हैं और फिर अचानक से अगर बंद करते हैं, हाँ. तो वो जो इतना लॉयल एम्प्लॉई है जो अपने भरोसे बैठा है, तो उसका भरोसा भी नहीं टूटना चाहिए, ये भी एक दिमाग में रहता है. तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रही है? Any of the panelists like to pick it up? अरुण जी. difficult question
जितना ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इतना इजी सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि जितना आप एम्प्लॉयज़ की देखभाल करते हो उनकी उतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, और वो अगर आप नहीं मीट करोगे तो उनका मोटिवेशन कम होता है। तो ये एक समस्या है, और इस समस्या को सॉल्व करने का मेरा एक तरीका होता था। मैं अपने अनुभव का बताता हूँ, आपको देखना है कैसा। मैं बोलता था यार देखो, तुम्हारी मैं सब सुनूंगा, ये कुछ जो बोल रहे थे उसमें भी लॉट ऑफ सेंस, सारी चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान के पास भी सब चीजें करने की शक्ति नहीं, कुछ चीजें मैं कर पाऊंगा, आप ये समझें, जो मेरे बस में है, जो मेरी कंपनी कर सकती है। कुछ चीजें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आज, कुछ चीज हो सकता है मैं आगे जाके कर पाऊं, उसमें आप कैटेगराइज कर लो। और ये शुरू से एक समझ बना लें एम्प्लॉयज के साथ कि आप उनकी हर विश को पूरी कभी नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें आप नहीं कर पाएंगे। कोई आके बोलता है मेरे को सडनली 50 लाख का लोन दे दो, नहीं दे सकता है। अभी मेरी एक मेडिकल इमरजेंसी थी, हॉस्पिटल में गया, एक छोटी सी लड़की आके रही साथ में अटेंडेंट की तरह, अच्छा काम किया। मैंने उसको बोला तू बेटी की तरह, कोई भी तकलीफ होगा, पहले दिन आ गई 7,000 का सर दे, लोन दे दो मेरे को, दे दिया। 2 दिन में पे कर दूं। 2 दिन के बाद एक और रिक्वेस्ट आई, 5,000 का लोन और दे दो सर, नहीं दे सकते, मना करना पड़ेगा, हाथ जोड़ के मांग ले। क्योंकि इसमें क्या है, दुनिया में 50 तरह के लोग होते हैं, कुछ आपका फायदा भी उठा सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि कौन फायदा उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, किसको मैं कितनी मदद कर सकता हूँ। और इसमें थोड़ा इनको शुरू से एक रूल बना दें, समझ आ जाए कि सब चीज नहीं मिलेगी तो दे आर ओके। मैंने पता नहीं मैंने आपका सवाल का आंसर किया कि नहीं। Great. Thank you so much. I think I know that there are a lot of interesting and pressing questions that you have, and that shows the excitement you have and an involvement you have in the topic. But we are, well past the time simply because of the quality of conversation we have had this morning. So I would like to take this opportunity to thank all of you first for coming and actively participating in this kind of a conversation. Kudos to you. You are doing a great job. And then I would like to, on your behalf, thank the esteemed panelists to answer some of your difficult and probing questions. And now you know where to go if you have any more questions to ask, right? So thank you very much. It has been wonderful. Thank you.